Otherwise, definitely I'm telling you, at the end of this discussion, आप खुद बताएंगे कि ये below average है. Tough and easy is a different thing. It may be tough for you. So the problem lies on your side. On that side, it is quite justified. It is not difficult. Yes, once you cross that pedestal, आप एक plane में आते हैं, then a tough paper, एक एग्जाम में वो बहुत मुश्किल सवाल पूछता है, तब ये एग्जाम मुश्किल नहीं होता है. Because there's not a single person from you who's appearing in this examination. All of you will be appearing. And not only you, people across the UT will be appearing in this examination. So if the level is high, it's for everyone. If it is easy, it's for everyone. Nothing is easy for a single aspirant. Nothing is tough for a single aspirant. Things can be easy and tough for a single aspirant only अगर उसका level बहुत नीचे है. Common problem is no problem. And common relief is no relief. आपने पेपर बहुत easy देखा. ये वाटर का फॉर्मूला पूछ रहा है H2O. ये नहीं सोच लो मेरे साथ और यहाँ पे 5 लाख बेवकूफ जो है एग्जाम दे रहे होंगे, उनको भी शायद आता होगा. But the problem is कि confidence नहीं, you still believe that you are mediocre in this hyper competitive environment that you see around, और आपका confidence उससे कम होता है. Despite striving, आपको लगता है that you may not be able to make it. When जब मैंने आपको पहली बात बताई कि that it is not so, it is all there within you. You just need to strive and exert, burn that midnight oil. कौन सा 3 महीने की बात है अभी अगर देखेंगे. It's not a big exam उस हिसाब से. And 3 महीने में it's quite doable. कोई उतना भी नहीं मैं आपको बताऊं कि आपको रोज हिमालय चढ़ के वापस आना इतना मुश्किल है ये. It is not analogous to that much of labor also. Simple that you have to generate some interest, change the approach, focus, maintain रखिए, and that's it. Within 3 months, you'll be at a different pedestal. You'll go through a different prism of life. So, since 3 महीने में अपनी presumption से लेके चलता हूं, I begin with this premise that you have 3 months. You may have less than that, you may get more than that. But had it been, हम 1 साल पहले मिले होते तो मैं आपको बोलता कि आप NCERT से start कीजिए. You prepare for the exam. आप टेक्स्ट बुक्स लाइए, आप हिस्ट्री 6 से 12 तक पढ़िए NCERT की, आप ज्योग्राफी को 10th, 11th, 12th की लाइए. मे भी कुछ लोगों ने आप में से वो अप्रोच भी अडॉप्ट किया होगा, पढ़ी भी होंगी वो किताबें. उसके बाद अगर आप यूपीएससी में भी जाएंगे, यू बी क्वाइट कंफर्टेबल देयर. बिकॉज पूछेंगे क्या, वो पूछते तो यही है जो हमने स्कूल में पढ़ा होता है. बट प्रॉब्लम ये हमने स्कूल में पढ़ा नहीं होता है. हमने स्कूल में रट्टा किया होता है और वहां पे लिखा होता है. दैट इज द रीजन हमारा, अगर किसी ने 12th तक आप देखेंगे, अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े, वो बच्चा जो है घर पे एक छोटा इलेक्ट्रिकल सर्किट भी ठीक नहीं कर सकता है. जो उसने लिखने के लिए क्या होता है, मुझे एग्जाम में नंबर आए, नॉट समझने के लिए. अब यूरोप में जाइए, दे बिल्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स अपने आप से, अमेजॉन से लर्न इन द स्कूल. That is the difference between schooling and learning. That's altogether a different subject. Even if we get time to speak about it, we'll discuss it. And then polity 6 से 12th अगर आप पढ़ेंगे, science अगर आप पढ़ेंगे 10th class की. But the problem here is that we don't have enough time. So हमारी जो will be a function of the availability or the quantum of time that is available to you. So here one mode is that it goes in the textbook mode. आप textbook से पढ़ के जाएंगे. Second is that you go, अगर आप उतना टाइम नहीं है, आपको सालों नहीं है, कुछ महीने हैं, तो एग्जाम रेफ्रेशर्स मार्केट में मिलते हैं, छोटे छोटे बुक्स में, उसमें आप पढ़ते हैं. तो वो मोड है. फिर कोई 1 महीने में स्टार्ट करे तो देन दैट इज वो कोशर गाइड से पढ़ के वापरेंगे. बट मेरे हिसाब से माई असेसमेंट है, जो आपके पास टाइम है अभी 3 मंथ्स, इट इज सफिशिएंट. देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं इस किताब का बताऊं, in this book जो आपका relevant इसमें मटेरियल है, it should not take you more than 10 days. 10 days में तो मतलब ये बंद करके फिर भूल जानी है. You understanding? मतलब मैं इस बुक को प्रेस्क्राइब नहीं कर रहा हूं, ना ये मेरी पब्लिकेशन है, ना ये मुझे पता है किसकी है. Out of the many sources that I found in the market, I went there. तो मैंने कहा मुझे दिखाइए क्या क्या आया है इसके लिए. तो आई फाउंड कि इन्होंने थोड़ा सा ठीक काम किया है. कंपाइलेशन की इनका कोई ऑथर नहीं होता, बिकॉज इट्स मेयर कंपाइलेशन. ये किसी के ब्रेन वर्क नहीं होता है. दिस इज लेबर, सिंपल. ये आप भी कर सकते हैं. वहां से कुछ चीजें लाई, यहां से कुछ चीजें लाई. यू हैव टू कंपाइल इट, मेक अ बुक सिलेबस के हिसाब से. कोई भी कर सकता है.
बट ठीक है, कंपाइलेशन ठीक है, सोर्सेज थोड़े से मुझे ऑथेंटिक लगे, यू कैन गो थ्रू देम। एंड इस किताब के हिसाब से देखिए, इफ इट इज टेकिंग यू 10 days, अगर ऐसी 6 किताबें आपको पढ़नी है तो कितने दिन हो गए? दैट इज 60 days। 60 days के बाद भी यू बी स्पेयर्ड विद द मंथ, जिसमें आप ये पूरा ब्रशअप कर सकते हैं। एंड ये अप्रोच भी आप नहीं अडॉप्ट कर लीजिएगा कि पहले आप 10 दिन एक किताब खत्म करें फिर दूसरी करें। मैं आपको उन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बोलता हूं, इफ द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू डिवोट टू वन सब्जेक्ट इज 10 days cumulatively, not at a stretch, cumulatively, then 60 days must be more than enough for you. एंड अब इस किताब में, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये किताब पढ़ रहे हैं, अरिहान पब्लिकेशन की ये इंडियन पॉलिटी है, इसमें आपको सब कुछ नहीं पढ़ना। आई वाज सीइंग दिस जनरल साइंस भी मैंने देखा। मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल, आपने इसका ये पहला पेज आप देख लीजिए, यहां पे वेलोसिटी है, स्पीड है, दे आर ऑल इंपॉर्टेंट फॉर यू। बट व्हेन यू कम टू द सर्कुलर मोशन, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। इतने एडवांस पे वो नहीं पूछेगा, सर्कुलर मोशन पे नहीं पूछेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे ये मैकेनिक्स का ये है, प्रोजेक्टाइल मोशन पे आपको नहीं पूछेगा। आई एम नॉट श्योर कि यूपीएससी में क्या पूछेगा वो या नहीं, वहां पे मैं श्योर हूं, आपसे तो बिल्कुल नहीं पूछेगा। सो यू हैव टू पिक द बेसिक थिंग्स जो आपको लगता है 10th स्टैंडर्ड तक पूछी जाएंगी। नाउ आई वुड हैव आस्क्ड यू कि आप 10th स्टैंडर्ड की किताब उठाइए एनसीईआरटी की, बट आई टोल्ड यू टाइम उतना नहीं है। एंड सेकंड थिंग, ये किताब जो होती है या तो इन्वॉल्व करता है, इंटरेक्टिव होती है। एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर इसमें आपको एक ये मिलेगा, एक्सरसाइज एक मिलेगी सॉल्व करने के लिए, वो कर लीजिए, जैसे मैंने आपको कहा कि आपका बेसिक फ्लेयर और एक्यूमेन बढ़ेगा। दिस इज बेसिकली अ बोनांजा दिस टाइम। अभी इतनी रिकॉर्ड नंबर ऑफ पोस्ट जो आई हैं सब इंस्पेक्टर्स की, एंड जिस हिसाब से हम देखते हैं कि जिस लेवल्स का अभी अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो इस वक्त पे ऐसा एक मौका मिलना मुझे लगता है वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए, इस जनरेशन के, जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड हम हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे जिससे हम इन बच्चों को जो सीरियस हैं इसके लिए, उनको तैयार करें, उनको मेंटर करें। तैयारी में अगर हमारी तरफ से, देयर आर मेनी लाइक माइंडेड पीपल हु आर forthcoming in helping aspirants in any field, तो इस फील्ड में भी हम जूम से भी हम सोचते हैं कि हम कुछ ओरिएंटेशन क्लासेस इनकी कराएं, और besides that if they need any specific help in the field we are ready to do that.